start with the thing. तो आज का एजेंडा है, we'll be starting with surprise. Yes, I have some surprise for you. And actually मैं वही कमेंट कर रहा हूँ. So okay, first we have surprise, and then we have interaction with Discord. I got that question कि Discord के साथ बहुत लोगों को पता नहीं है how to use Discord, and they are struggling with it, इसलिए वो लोग Discord पे नहीं आ रहे हैं. So that is something that we'll be looking into. Fair introduction to cloud. And अगर आप लोगों को 30 days of cloud नहीं भी मिला है, that's okay. हम लोग sessions के अंदर will be mostly focused on कि जो उसके core concepts हैं उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, and those concepts can be applied onto the quick labs. Okay. मूविंग ऑन, हम लोग बेस कंसेप्ट देखेंगे, एंड फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे थोड़ा बहुत. तो नेक्स्ट वीक के लिए जो जो भी आपको सॉफ्टवेयर लगेंगे उसका इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा. कूल. ओके, लेट्स गो ऑन. Harshit, Yes, yes. yeah. Would you like to take this on? Okay. So, what is Vault? Vault is तुम्हें जो भी तुम्हें 30 days of cloud में achieve करना है, send it to us. We will keep it with us. After 30 days of cloud ends, we will reveal जो भी तुम लोगों ने लिखा है, जो भी तुम्हें 30 दिन में अचीव करना था, and we can discuss कि तुमने किसने किया, किसने नहीं किया, कितना अचीव किया, कितना अचीव नहीं किया. लाइक कुछ खास नहीं है, बट हमारा एक आइडिया था कि मे बी लोगों को मोटिवेशन करेगा ये चीज करने के लिए. सो इफ यू वांट टू go to the website dsctctgithub.io, and the vault option is there. You can send us whatever message you want to send, which will be revealed to you after 30 days. And yeah, उस टाइम देखेंगे जो भी होएगा 30 दिन बाद. तो अभी तो इतना ही प्लान. So the thing is कि usually, okay, link will be shared. Usually ऐसा होता है कि we don't have motivation to do something, and it is said like the lecture, so you have a motivation to do it. So go ahead, write it down what you want to achieve in this 30 days, and हम लोग फिर उसके लिए करेंगे. You guys will write it down, and then you will get to do this. I'm unable to push code. क्या है भाई? हाँ, वही बोल रहा था, कोड पुश नहीं हुआ. ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा लिंक जैसे ही वो एक्टिव होएगा. So bad. Can you bear with me a moment? So sorry. So like an off-topic cheese है. How many of you guys use GitHub? Okay. So how do you guys actually access the GitHub from your CLI? Okay, Rohan uses GUI. Okay, Praveen hasn't done that. Okay, got it. Like many of us are using GitHub. तो access कैसे करते हो? तुम लोग कोड पुश करने के लिए या like अगर तुम लोग के पास git bash exactly. तो did you guys followed like in the last what we say जो last update आया है, that was, if I'm not wrong, this month का beginning में we got a new update that says you cannot access CLI
with the normal password. You need to get the token. Yes, exactly. So yeah, so issue हो गया है थोड़ा token का. So I will open it up after some time, and then we will continue with this vault thing. Till then, let's move on. So sorry for that. My bad. वो push नहीं हो पा रहा है इस token की वजह से. I had registered token, but it is still not working on. Okay, we will look into it afterwards. So coming to the Discord. So till then, guys, तुम लोग अपने हिसाब से सोच सकते हो कि तुम लोग वो वॉल्ट में क्या क्या डालना चाहते हो. व्हाट आर योर टारगेट्स फॉर दिस मंथ एंड व्हाट यू वांट टू अचीव और प्रेडिक्ट फॉर दिस मंथ. ठीक है. तब तक आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज डिस्कॉर्ड? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद डिस्कॉर्ड एंड आई गेस इट शुड बी अपोजिट वन, कि कितने लोगों को अभी भी इश्यू है डिस्कॉर्ड पे आने के लिए. ओके. Yes, Discord is pretty great. Yes, we did. Okay, little confusion due to multiple chats. That would be an issue. Okay, I see. So, coming to multiple, the question that like arises कि Discord में multiple chats है, उसके वजह से issue आ रहेगा. So here's the thing कि Arshit, could you share the screen? I won't be able to. Tejas, Yeah. Tejas, या stop share कर या Discord share कर एक बार अपना server. Discord share. और करना है. 2 minutes. हाँ, हम लोग ने डिस्कॉर्ड के अंदर वी हैव ऑक्टेव. ओके, सो कमिंग टू द डिस्कॉर्ड में बहुत सारे चैनल्स है. इट might become a bit confusing. So take a start from the first one, scroll up. Yes, exactly, we can do that, Dheeraj. For all those who are new to the Discord, so we have अपने हम लोग के पास Discord के अंदर categories होता है and then we have channels. ठीक है. So categories is like a combination of a set of channels. एक साथ तुम लोग उसको रख सकते हो. So the first category is information. इसके अंदर तुम लोग को जितना भी information लगेगा Discord के लिए, that all thing are available. Get role, suggestion, how to get help, rules, starboard. So starboard is like कि जब भी memes भेजेंगे, so if you don't want to miss out on those, just join Discord. तो डिस्कॉर्ड के अंदर वी हैव स्टार सिस्टम. तुम लोग मीम्स के अंदर जब स्टार करते हो तो आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टार इट बिकम्स कि ये पब्लिक का लाइक्ड मीम है, दैट वुड बी posted onto the star board. Then we have resources. We'll be sharing out the resources कि आप कहाँ से चीज़ों को कर सकते हो. For I got a lot of requests for web. We even have for Python as well as C++. तो वो सब वहाँ पे डालेंगे. Then we have help section. So help section is very much special that I would like to discuss. Yeah. तो हेल्प कैटेगरी के अंदर वी हैव अल्फा बीटा गामा, लाइक बेसिकली 3 नाम दिए हैं हम लोग ने रैंडम. यू जस्ट गो देयर, आस्क योर क्वेश्चन एंड समवन विल बी देयर दैट वुड हेल्प यू. ठीक है. तो
आपके पास जो कोई भी क्वेश्चन है, इज इट रिलेटेड टू GDAC और डेवलपमेंट, वेब, AIML, क्लाउड, एनीथिंग, app development, anything that is related to technology, you can just go and ask about it, and तुम लोग को वहां पे आंसर मिल जाएगा. If that answer satisfies you, just write thank you and whoever is has answered your question, just ना mention कर दो, so like next person को भी पता रहेगा कि that question has been already answered. Okay, feel free to ask any kind of question that you have. In fact, rather than asking me that question ki I have filled that thing, I didn't got the mail, what should I do, you can even put it in there as well, because वहाँ पे there will be people who will know कि क्या situation है related to the mails and all, that can answer, because सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ कोर में और भी बहुत सारे लोग हैं, and they also keep track of things with me, so you can get answers fast and even with other people's as well. तो यहाँ पे हमारे साथ दो तीन कॉन्वर्सेशन हुए थे, that was with Anshu. He had questions regarding regex and web, so that was answered by Harshit and Shudhanshu. So just post your question, it will be answered, don't worry about it. Then moving on, we have lobby. This is the fun section. General है, general is basically unofficial, वहाँ पे तुम लोग को जो भी बातें करना है, you can do that. Then we have top 3 learnings. So ये अभी से useful होगा, that is कि हम लोग जो भी session करेंगे, you guys can go there and write down your top 3 learnings from that session. It could be anything कि I learned about cloud, I learned about GCP more, and तुम लोग को basically वो session में से क्या अच्छा लगा, what was your takeaway from that session, you can write it there. Then we have memes and games. तो memes is basically the page जहाँ पे तुम लोग technology like funny memes share कर सकते हो. Just make sure it just stays in a certain decorum, and it just don't share wild memes. Okay. Then we have games, that is empty. If you want to talk about any kind of games, you can talk about it. Then we have news section. News section के अंदर we have all the kinds of announcement, that is हम लोग के फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के जो भी विनर्स होंगे, जो भी स्पेशल अनाउंसमेंट्स होंगे, वो सारे वहाँ पे होंगे. इवेंट्स है, दूसरे GDCs के इवेंट्स, दूसरे TCT इवेंट्स, जैसे कि अभी जेफर आएगा, we even have different communities, they we will post their events as well. Then we have topics. If your question relates to specific topic, that is web, Android, AIML, cloud, Flutter, Firebase, you can put it there. Bot command अभी के लिए empty है. Then we have voice chat, the most lively one currently. इसके अंदर we just had a lot of chat in past week. जब भी forms came out, तो we all were on the voice chat 0. जैसे कि मैंने फोटो भी डाले थे, even you might have seen in Insta status as well, कि we all were vibing there, refreshing like 100 times, क्योंकि बस वो लोड ही नहीं हो रहा था. Oh, I see. But I hope अमन कि मैं जो बता रहा हूँ, that is connecting. Yes, okay, cool. तो basically इतना ही है Discord में. And the special thing about Discord is कि हम लोग का यहाँ पे 30 days of cloud का भी section बनाया है. 30 days of cloud का भी section बनाया है. So we have 2 announcement for that, that is certificate and badges. तो I will tell you about that कि क्या है वो. Okay. Yeah, Tejas, now you can share the slides. तो जिन लोगों को भी 30 days of Google Cloud मिला है, they know कि हम लोग को वो tracks खत्म करना है. If you complete that track, you get the certificate from the Google. But for those who weren't able to do it due to some XYZ reason, जिनको भी नहीं मिला है, they still have the chance. Don't worry about it. Of course, हम लोग Google के जैसा तो नहीं दे सकते हैं. But what we can do is कि हम लोग के साइड से you will get for all those who attend 4 lectures. हम लोग का 30 days of cloud में 4 lectures होगा. We are planning on every Monday. If you have issues with the timing or the dates, you guys can share it. Again, go to the Discord. That would be the most convenient one rather than DMing me. Best वही होगा कि you guys just put it there. ठीक है.
तो वहां पे कॉमन रहेगा, तो वी कैन इवन डू पोल्स एज वेल देयर कि ये डेट पे चाहिए या ये डेट पे, दैट वुड मेक थिंग्स इवन मोर इजियर, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द डिस्कॉर्ड। हाँ, एंड एक मिनट रुक जाते हैं। तो जिन भी लोगों को नहीं लगा है, दे हैव स्टिल चांस कि जो भी ये 4 सेशन अटेंड करेंगे, दे विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम GDAC ऑन कंप्लीटिंग द आवर वर्कशॉप, और लाइक कंप्लीटिंग अ 30 days ऑफ क्लाउड का जो इवेंट है वो, ठीक है। How do we keep track of attendance? So whoever so this platform keeps track of all the attendance, who came in, who registered, at what time they came, went. So it keeps all the things there. Okay. Yeah, that's the thing. And ये 4 चीज है. We have more 2 things for those who got selected. Even if for those who didn't got selected, they are also eligible. One is learner. The learner one is very specific to जिनको select हो गए. We will keep track of. Surely Anand will come to that question. Uh, put your questions into Q&A section so that becomes easier. Okay. तो जो भी ये 30 days में as a good learner, we will keep track of students who are into this event, and जो भी good learner का जो criterias है उसको clear करेगा, we will have them, we will give them a badge that a single student will be selected. He will get the badge of a skill badge जैसे Google का है वैसे ही, but it would be from GDAC and it will be allocated to only one, ठीक है। And the similar thing we have for volunteer. तो volunteer कौन होगा, जैसे तुम लोग questions डाल रहे हो वैसे आंसर करने वाले भी लोग हैं, तो whoever will be the most supportive person throughout this 30 days of cloud for this duration, he will get the badge of the best volunteer for the 30 days of cloud. Does that sound exciting, guys? Yes. Keep it going, guys. So the badges and the certificates both will be shown to you, will be updated in the slides as well as, okay. Yes. Okay, Yoshit, we got you. Yeah, moving on now, coming to the conceptual parts. All the announcements are done out of the windows. Elephants has been addressed. Now it's time to get started with the fun technology. So starting with the cloud क्यों important है? Anyone would like to take a break at it? I guess अब तक तो सबने slide पढ़ लिया होगा. Or should we just move ahead? You all believe cloud is super important. In a minute, guys. Come on. Should we move ahead? Oh, okay, great. Let's move ahead, guys. Okay. तो क्लाउड में 2 ट्रैक है. वन इज क्लाउड इंजीनियरिंग एंड अनदर वन इज ML. तो क्लाउड इंजीनियरिंग में this is for those who got selected from the Google for 30 days of cloud event, Google Cloud. So they will have 6 modules. In each module there will be around 6 things, that 6 tasks. Either they could be a video or a lab. Okay. तो हर एक मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक मोटिव है. तो द फर्स्ट वन इज just to get you introduced to the GCP platform. The second one is infrastructure का fundamentals के लिए है. The third one is environments, pretty self-explanatory. Yes. And yeah, I guess the names are pretty self-explanatory, and we will look into it in more details as we move ahead. Next slide. Okay, the second one is for data science and machine learning. तो इसके अंदर मोस्टली क्लाउड का हेल्पफुल होता है, वो डेटा मैनेज करने में, डेटा विजुअलाइजेशन है या ट्रेनिंग वगैरह में बहुत हेल्पफुल होता है क्लाउड. एंड yeah, that's it, what you will be looking into the DSML wala track. Okay, move ahead. Let's move ahead. Okay, so what is cloud anyway? Anyone would like to answer? What is a cloud? I like
वी नो कि बादल वाला क्लाउड नहीं यार, अपना टेक्नोलॉजी वाला क्लाउड क्या है? कम ऑन गाइस. Virtual database, okay, that's a way to break it. So virtual drive, a server, remote server, share someone else's resources, a system stored in a large offshore location, okay. Storage, okay. Remote storage, okay. Remote computers, okay, okay. I see, I see. So most of our thought, most I can say that most of us having a thought as कि और जो भी क्लाउड है इट इज कि जहां पे मैं अपनी चीजें स्टोर कर सकता हूँ कहीं और जो मेरे डिवाइस में ना हो, ठीक है. So let's break it a bit. That's not what the whole cloud is. It is surely the part of the cloud. Rachit says virtual machines. Okay, that is a bit like a good way ahead. APIs too. Uh, okay, services and the softwares. Shul says, okay. Okay, Tejas, let's move to the next one. Servers. Okay, Sohan, that's a good way to put it. There's much more than it being a server. Server that can be accessed remotely. Okay. Okay, guys. Let's. I know you guys might have more answers, but say. Let's see what I have to present to you. So the cloud is divided into this 5 fundamental characteristics that we can do. That is on demand self-service. That is, you don't get to go to the market, buy a hardware and put it into your server rack and boot it up and run it up to make things work. There is no such kind of thing required. As a developer or as an architect, you can just go there and ask for it and you get that. Okay. Broad network access. uh, Broad network access, so it doesn't restricts you to your okay, this one is very much specific to the vendors, but you can say कि जितने भी अभी current vendors है, considering the major ones, that is Azure, AWS or GCP, all three of them would give you this broad network access. That is, आप अपने servers को कहीं पे भी implant कर सकते हो. So if you imagine कि मैं अपना सर्वर चालू करना चाहता हूँ, so I would have to go there, buy a place, put my servers there, and then I can have that server, like use that server in that location. तो अभी उसका भी जरूरत नहीं है. I save money there. Resource pooling. So what resource pooling means is कि you share resources. That is कि you do not need to own whole thing. जब तुम लोग यूज नहीं कर रहे हो, so that can be used by someone else. ठीक है. So that is, you can relate it with the on demand self service, that is and elasticity. So basically you have a lot of resource pool which you can get when you want to use it. Otherwise it just stays there and someone else is using it, and it wouldn't even bother you. वो तुम्हारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे वेट नहीं डालेगा. ठीक है. Vedant, that could be a network issue, I guess. Moving on. Rapid elasticity. So what it means is, imagine तुम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया है and it had some kind of meme in it. Okay, engineers हम लोग को memes के से और कुछ सूझता नहीं है. So let's say कि वहाँ पे कुछ meme था and it was so funny, it got viral, and suddenly you hit a lot of users trying to gain access to your website. What will happen? Anyone would like to guess what will happen? Crash. Yes, the same thing that happened on that Google form. Bichara Google form mar gaya. It couldn't withstand. There was a lot of request coming in at the same time. Yes. And what happens is when you try to boot it up again, and it again goes to the crash because again the same number of requests are coming. Exactly, the same thing happens at the exam result time.
कि थ्रू आउट द ईयर तुम्हारे पास कोई भी यूजर नहीं है, तुम लोग वो वेबसाइट को बस इतना सारा सर्वर रख के चला रहे हो विच इज ऑफ नो यूज, एंड जब सारे यूजर्स आएंगे इट जस्ट गेट्स टू द पॉइंट कि ये सर्वर्स भी कुछ काम के नहीं है, ठीक है। सो कैन यू सी द इश्यू कि जब तुमको एक टाइम रहेगा जब तुमको बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए, एक टाइम है जब तुमको वो रिसोर्सेस चाहिए ही नहीं, दे आर जस्ट सिटिंग देयर एंड टिकिंग इन द डस्ट, ठीक है। तो दैट्स द थिंग दैट वी गेट विद द क्लाउड वेंडर्स, कि जब हमारे पास ऐसे क्लाउड वेंडर्स है कि जो तुमको जब तुम्हें चाहिए तब वो रिसोर्सेज देंगे, जब नहीं चाहिए तब वो निकाल देंगे, यू डोंट गेट टू पे फॉर दैट, ओके। दैट्स हाउ वी हैव मेजर्ड सर्विसेज, तुम लोग उतना ही पे करोगे जितना सर्विसेज या जितना रिसोर्सेज तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। I hope now it makes a bit more sense than just saying it is a remote storage or just saying कि वो एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। सो ऑन टू द दोस थिंग्स कि टेक्निकलिटी में वो क्या होता है, दिस आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से, ठीक है। आई गेस वी शुड मूव ऑन। अच्छा मैं फास्ट जा रहा हूँ स्लो जा रहा हूँ, यू गाइस डू मेंशन इट, ठीक है। हाँ, एज आई सेड कि हर एक कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होता है एंड दिस डेटास इतना सारा डेटा होता है कि दे नीड टू एक्चुअली मेंटेन लिटरल फिजिकल लोकेशन एंड यू माइट थिंक कि कितना लोकेशन लगेगा, इतना सा रैक रखना है ना, लाइक आराम से हो जाता रहेगा, बट नो दैट्स नॉट द कंडीशन, यू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस एंड उसके लिए भी इनडायरेक्टली यू आर पेइंग फॉर इट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई क्लाउड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज बूमिंग, क्योंकि एज अ ओनर इमेजिन कि आप एक कंपनी ओन कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर पेइंग द रेंट फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन, you are paying let's say $1,000 to ठीक है 1000 रुपीज तो नहीं होगा, मेरे को रुपीज में समझेगा भी नहीं अभी, ठीक है। लेट्स से यू आर पेइंग $1000 फॉर अ लोकेशन, ठीक है, एंड दैट the half of the location is actually filled with just the servers, ठीक है, and half of them is actually being used by the humans, like जो normal office space होता है वो, ठीक है। and imagine you can just remove all of those hardwares and you will pay for just $500 for just that half of space, and all those servers you will like, it will obviously cost you less if you go with the cloud vendor such as Google, okay. So that's how it makes more cost effective and you don't have to worry about the hardware maintenance, ठीक है। someone brought that point कि हार्डवेयर मेंटेनेंस का जरूरत नहीं पड़ता, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि ये मेरा पीसी वहां पे पड़ा है, व्हाट काइंड ऑफ यू नीड टू एक्चुअली क्लीन दोस हार्डवेयर्स, कि आपको यू नीड टू मेक श्योर इट इज एज मच एज पॉसिबल डस्ट प्रूफ हो, वहां पे प्रॉपर कूलिंग हो रहा हो, इट शुड नॉट बी गेटिंग रियली हीटेड अप, otherwise it can catch fire or even it can give you literal latency due just because it is getting heated up, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज होता है, यू नीड टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो ये तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है, वो कर रहे हैं वेंडर आपके लिए, व्हाई शुड आई वरी अबाउट इट, राइट, एंड यू इवन पेइंग लेस फॉर इट। सो that's why the cloud is getting so much of boom कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। and again जब imagine like a Google level of vendor is providing you with a tool, it won't be just the tool, it will be with the benefits of the tool as well, like कि वो चीजों को automate करके दे सकता है, it gives you APIs that makes things more simpler, ठीक है। we'll look into all of those Tejas, let's move. Ha ha ha. So have you been in this situation कि जब ऐसा था एक ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है, it works on your computer, you share that file and it suddenly don't work on your friend's computer. Has that ever happened to you guys? It is just like you have to call them, you have to put a meeting and then you have to be like okay Avinash, yeah, so
या सौरभ, आई वाज सेइंग कि ऐसा कभी हुआ है कि यू शेयर अ प्रोजेक्ट एंड योर फ्रेंड सेज कि यार ये मेरे में तो नहीं चल रहा है, एंड यू थिंक मेरे पीसी में तो चल रहा था, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग ऑन हिज पीसी? Not exactly, Rohan. Like it happened with me. It was a different scenario though. But ये चीज even this could be a very common issue कि I completed my project. मैंने project complete कर लिया. It works fine on my PC. मैंने इसको upload कर दिया Heroku पे. I thought it would work on Heroku without any issues. मैं अपने दोस्तों के साथ मस्त लिंक शेयर कर रहा हूँ. अरे ये देखो मस्त ऐप बना है. सब लोग देख रहे हैं. Like नहीं चल रहा है. Like है, मैंने तो देखा चल रहा है, मेरे लोकल पे तो चल रहा है, हीरोकू पे क्यों नहीं चल रहा है, ये क्या हो गया? was looking into it and what can I say, OS have नहीं नहीं यार, टाटा वाई खत्म करके तो नहीं भगा सकता ना so OS have the different ways to do their things. So we have tools for that, and those are containers, and with the containers we have Docker. So we'll be looking into the Dockers in a bit. Okay, let's move on. ठीक है, so coming to the question, what is a virtual machine? I so the like definition Google से लिया है, ठीक है a virtual machine is visualization slash emulation of a computer system. Okay, that's a nice way to put it, Rohan. A computer and a computer, you can say it that way. It's not like a matrix though. Virtual machine basically क्या करता है, it tells your hardware to think that कि वो let's say you have a computer that works on Windows, ठीक है, and you have a virtual machine that is for Linux. So what the virtual machine will do is वो हार्डवेयर को जाके ऐसा बोलेगा, तू विंडोज के लिए नहीं, तू लिनक्स के लिए काम कर रहा है, ऐसा सोच के काम कर. एंड that's all what it does. ठीक है, so what happens is it just divides the thing into the two like kind of, you know, it has two different thinking methodologies. One will be according to the Linux, one will be according to the Windows. That is the most simplest way I can put it. I hope you guys get that point कि virtual machine क्या है. Okay, Adarsh is understood. Guys, I need 2-3 more confirmations, then I will move on. Yes, it is clear. Make sure. Yes, Rohan, we will come to those parts. Okay, it seems many of you got the point कि virtual machine क्या है. Great. तो बेसिकली वो बस अपने को अनेबल करता है कि मैं अपना पीसी के अंदर कुछ दूसरा ओएस के साथ कुछ दूसरा पीसी को रन कर सकूं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ओके, okay, coming to the question of what is I. Did we miss one question in between? Okay, I guess. ठीक है. So we have Kubernetes. I think we should have taken one more question in between, that is कि container क्या है, and I guess that was just like वो shuffle हो गया है. It's okay तेजस, it's okay, वो shuffle हो गया, वो पीछे चला गया. No matters. ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ. So what is first we will look into what is the container. Can we go a slide back? ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि वर्चुअल मशीन कैसे पूरा का पूरा सिस्टम को बोलता है कि इमेजिन यू आर नॉट वर्किंग फॉर विंडोज, यू आर वर्किंग फॉर लिनक्स, ऐसे काम करो. ठीक है, दैट्स व्हाट वर्चुअल मशीन डू. अभी दैट इज एन इंटेंसिव टास्क. ठीक है, क्योंकि नाउ योर मशीन नीड टू थिंक अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स. लाइक उसको कभी कभी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं विंडोज के लिए काम कर रहा हूँ, कभी कभी वो सोचेगा मैं लिनक्स के लिए काम कर रहा हूँ, वो कभी इसके लिए काम करेगा, कभी उसके लिए काम करेगा. एंड यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट थिंग्स विल गेट स्टार्ट गेटिंग मेसी, राइट?
कि ये चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएगी, कभी वो विंडोज के लिए काम कर रहा है, कभी वो लिनक्स के लिए काम कर रहा है, या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम कर रहा है. So that makes confusion, and that slows your down. Not basically confusion, it like अपने लिए confusion है, machine के लिए it is like they have to make sure कि वो cycles में change कर रहा है and do those things. तो what we can do is कि we can use containers. So container is basically उसी का lighter version है. वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वापस नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा, लेट्स डू अ थिंग, एक एम्प्टी स्पेस लेते हैं. इमेजिन कि आपका जो घर है दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज योर डिवाइस, एंड उसके अंदर जो भी यू नो हैव यू हैव लाइक बॉक्सेस इन योर हाउस, मे बी कबर्ड्स, ठीक है. तो कबर्ड्स वुड बी लाइक योर कंटेनर्स. उसके अंदर उतनी चीजें जितनी आपको डालनी है, एंड उसके बाहर जो भी चीज है उसका अंदर वाली चीजों के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट फ्रॉम कि वो घर के अंदर है. दैट्स ऑल. द सेम थिंग विद द कंटेनर्स, कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है उसी में वो रन करेगा. इट हैज ओनली डिपेंडेंसी एज इट्स अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड वो ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के, इवन इफ यू हैव डाउनलोडेड पाइथन का कोई वर्जन और कुछ भी करना है, ठीक है, इवन इफ यू हैव Python ka downloaded version, even if you have Node ka some XYZ version, it doesn't matter when you put things into the container. Container will have its own softwares, its own dependencies, and उसके अंदर तुम्हारा जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा वो इन्हीं डिपेंडेंसीज पे चलेगा, इन्हीं डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर पे चलेगा, ठीक है. सो एसेंशियली जो क्वेश्चन को अभी हम लोग ने 2-3 स्लाइड पहले देखा था कि इट वर्क्स ऑन माय पीसी बट इट डजंट वर्क्स ऑन योर पीसी और समवन एल्स पीसी, that is what will stop happening, क्योंकि जब तक underlying OS सेम है it will work perfectly fine. ठीक है. आपका कौन सा वर्जन चाहिए आपको सॉफ्टवेयर का वो मेंशन करो. आई वांट लेट्स से Python 3.7, आई वांट Python 3.7, आई वांट Node this version, आई वांट this thing this, बस हो गया, and it will do its thing. ठीक है. Whenever you will send your container to your friend, whenever he will make a app out of it, or whenever it will make run the image out of it, तो वो वैसे ही रन करेगा जैसे वो तुम्हारे पीसी में रन कर रहा था. So that's make it simpler. ठीक है. I hope you guys are getting the part of container. Yes, nice. Okay. Yeah. तो now as I said कि कंटेनर पूरा OS डिपेंडेंसी निकाल देता है, तो you don't have to load OS, तो फास्ट चलता है तुम्हारे वर्चुअल मशीन से. It gives you only those dependencies that are required for the current app. ठीक है. So that makes it simpler to run, and that's all about the containers. Now moving on, we have another step, that is Kubernetes. Kubernetes के बारे में कितने लोगों ने सुना है? Okay, Abhishek is asking कि can you explain again? Okay, Abhishek, can you be specific about कि कौन सा part I should explain again? Give me one till then I will drink water. Container वाला. Yeah. So what a container does is, okay, great. What a container does is it puts your app into a box. वो box के अंदर आपके पास जो app है, ठीक है, app in the sense it could be a web app or application like phone application, और basically कोई भी application जो कोई भी सॉफ्टवेयर पे रन करे, ठीक है. दैट इज कि आपका जो कुछ भी ऐप है उसको जो भी डिपेंडेंसीज का जरूरत है एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के उसको जो कुछ भी चाहिए, दैट इज पाइथन हो गया, पाइथन के अंदर लेट्स से जैंगो चाहिए, और पाइथन के अंदर उसको टेंसरफ्लो चाहिए, या पांडास चाहिए, या केरास चाहिए, या नंपाई चाहिए, ठीक है. वो सारी चीजें डाउनलोड करेगा एंड इट विल पुट इट इनटू अ बॉक्स. ठीक है. दैट इज अ कंटेनर. एंड आप जब एक कंटेनर क्रिएट करते हो दैट रिमेन्स सेम,
मैं अपने पीसी पे कितनी भी बार उसको रन कर लूं, इट विल वर्क द सेम वे। मैं किसी और को दूं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, एज लॉन्ग एज सेम है, इट वुड रन द सेम वे, ठीक है। सो दैट व्हाट अ कंटेनर इज, इट जस्ट पैक्स योर ऐप इन अ वे कि आप वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ उसको पैक कर ले, डेवलपमेंट का जो भी चीजें है, डिपेंडेंसीज है, उसके साथ वो उसको पैक कर देता है। जो भी जरूरत की चीज है वो एक साथ मेंशन कर देता है। तो जो इंस्टॉलेशन आपको बाद में करना पड़ता है मैन्युअली, वो कंटेनर खुद कर लेता है, ठीक है। अभी समझा अभिषेक? Okay, great. Anyone else have any doubt related to containers or virtual machines or cloud? Okay, Adarsh says no, Shantanu says no, Shruti Jadhav says no, Kunal Agrawal says no. Nice, nice. Okay. Okay, I guess then that's pretty clear. अच्छा है, चलो, great, great, great. Okay, now coming to the next point, what is Kubernetes? ठीक है, तो मैंने बोला कि आप आपका पूरा ऐप को एक कंटेनर में डाल सकते हो, ठीक है। अभी मेरा इमेजिन इमेजिन कि आप गूगल, ओके लेट्स से आप I need to think about a great application for this one. Okay, let's consider this thing only कि let's say आपके पास कोई एक ऐप है, ठीक है, that have a lot of users, ठीक है, into different locations, ठीक है। और लेट्स जस्ट से कि आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं एंड आपके पास बहुत सारे लाइक सर्वर तो एक नहीं होगा, ऑब्वियस है ना। वी हैव मल्टीपल सर्वर्स, वी हैव मल्टीपल नोड्स, लाइक नोड्स इन द सेंस कि मल्टीपल कंप्यूटर्स दैट एक्ट एज अ सर्वर, ठीक है ना। सो ओके, हियर आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट अ सर्वर इज। ये सबको क्लियर है व्हाट अ सर्वर इज, और शुड आई एक्सप्लेन इट? Okay. Rohit, I didn't got you. Twitter yani, like, I mean the server, the physical servers. Okay, Jas is what is cloud once again? Okay, uh, okay, Jha Anil. So I think your name is Anil, if I'm not wrong. Okay, okay, I will take all the question answers later. ठीक है? नहीं यार, देखो, सर्वर का मतलब होता है एनी पीसी। इफ यू इमेजिन व्हाट एन इंटरनेट इज, सो इंटरनेट का बेसिक डेफिनेशन यही है कि इट इज जस्ट अ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नोड्स कंप्यूटर्स। तो इंटरकनेक्टेड नोड्स या कंप्यूटर्स का क्या मतलब है? मैं अपना भी कंप्यूटर को सर्वर बना सकता हूँ विथ एक्सपोजिंग इट्स आईपी। मेरे कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है, इट हेल्प्स अदर यूजर टू फाइंड माय कंप्यूटर इन द नेटवर्क, ठीक है। एंड बेसिकली दैट्स ऑल व्हाट सर्वर्स आर। ऐसे सारे कंप्यूटर्स, ऐसे सारे डिवाइसेस जिनका अपने को एक्सटर्नल आईपी पता है, जिनका आईपी एड्रेसेस से मैं सर्च कर सकता हूँ। सो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स कि वो आईपी एड्रेस को हम लोग लाइक ऐसा टेक्स्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, www.google.com, लाइक उसका आईपी में कैसे कन्वर्जन होता है एंड ऑल। बट या दैट इज द एसेंशियल थिंग कि तुम लोग ऐसा टेक्स्ट डालते हो, उसके रिलेटेड एक आईपी एड्रेस होता है, एंड दैट आईपी एड्रेस इज बेसिकली एक डिवाइस का लोकेशन इन द नेटवर्क। एंड वो दैट कैन बी एनी डिवाइस, लिटरली एनी डिवाइस, ठीक है। That is what a server is. It is just a device that is connected to network and it has its external IP open. And हाँ, that's it. वो एज अ सर्वर एक्ट कर सकता है, वो कोई भी चीजों को दे सकता है। सो या दैट्स अबाउट इट। तो दैट इज द सर्वर, ठीक है। तो अभी इमेजिन करो कि मैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंप्यूटर बैठा के रखेगा, ठीक है। if I have multiple users, I would require a lot of computers. And who will handle all these computers? And I cannot manually go there and download कि मैंने समझो एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि गूगल ने जो अपना लेट्स से यूट्यूब ओपन किया है, ठीक है।
तो इट कैन नॉट, लेट्स से गूगल का जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, लेट्स इमेजिन कि गूगल का फर्स्ट पेज एंड सर्च पेज इज इन अ, यू नो, दैट्स अ सिंगल ऐप, इट हैज इट्स डेटाबेस कि जहाँ पे उसके सारे वीडियो स्टोर्ड है, ठीक है, दैट इज द सेकंड थिंग, ठीक है, ये दो चीजें हैं अपने पास, ओके। सो अभी मैं ऐसा तो नहीं कर सकता है कि जितना भी मेरे यूट्यूब के पेजेस है वो सारे के सारे पेजेस को एक ही कंप्यूटर में रन करेगा, दैट वुड जस्ट ब्लास्ट माय पीसी ऑफ, राइट। इतने सारे रिक्वेस्ट आएंगे, इट वोंट बी एबल टू हैंडल इट, विल हैव लेटेंसी ओवर द रूफ, सो दैट वुड बी द इश्यू। तो उसको कम कैसे कर सकते हैं हम लोग, वी विल नीड मोर पावरफुल सर्वर्स, वी विल नीड मोर सर्वर्स, ठीक है। तो अभी अगेन इतने सारे सर्वर्स हैं, इन सब के अंदर वो सारी चीजें इंस्टॉल कौन करेगा, डालते कौन बैठेगा, दैट्स अ क्वेश्चन। कि इफ यू, इवन इफ यू इमेजिन कि जब तुम लोग ज्वाइन करते हो कोई कंपनी को, तो हाउ वुड अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सेट अप योर पीसी, यू नो। तो अगर आई इमेजिन कि अगर कोई बड़ी कंपनीज है, दे विल हैव अ रेडीमेड solution for that, that is an automated solution कि that is not the exact same thing that happens on the server level, but okay, let's imagine कि the same things happens with the servers कि we will have our containers and we will just put our containers there and we will say run this container and my app is online, ठीक है। तो now my all different kind of devices that I have, let's say मेरे घर पे 5-6 CPUs पड़े है, नहीं वैसे बता रहा हूँ समझो मेरे घर पे 5-6 CPUs पड़े हैं, so they all will be, you know, having that website in it, ठीक है, and they all will be serving those pages. So what Kubernetes does is वो सारे ऐसे जो भी मेरे साथ जितनी भी चीजें हैं, ये समझो 4 CPU है कि जो मेरे वेब पेजेस दिखा रहे हैं, एक CPU है कि जो डेटाबेस का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पांचों को एक साथ रख के एक पॉड में डाल देगा। सो पॉड इज बेसिकली कनेक्शन ऑफ collection of all the servers or all the nodes that I have, not the servers, all the nodes that I have, ठीक है। तो node could be again anything, any device that is able to serve the purpose that is being used for तो ऐसे सारे जब मैं चीजों को इकट्ठा कर लेता हूँ, ऐसे सारे कंटेनर्स जो भी नोड्स पे रनिंग है उन सबको इकट्ठा करके एक साथ डाल देता हूँ, तो दैट बिकम्स अ पॉड, ठीक है, POD, पॉड, एंड ऑल द स्पॉट्स टुगेदर वर्क समहाउ, एंड दैट्स Kubernetes कि मैं बहुत सारे कंटेनर्स को एक साथ काम पे लगा रहा हूँ, दैट इज अ Kubernetes। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। Guys, Kubernetes समझ रहे हैं? Yes. Okay, we are having pretty yeses. Okay, moving on. So coming to the load balancer, this I know मैं कुछ don't imagine कि मैं तुम लोग को पूरा थियरी बता रहा हूँ, this is just like an overview कि जो तुम लोग को फर्स्ट वीक ऑफ लैब में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड आई नो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इट इज प्रिटी वास्ट एंड लिटरली अ पर्सन वुड बी हैविंग हिज जॉब ऑन जस्ट ऑन दिस थिंग कि वो सिर्फ सर्वर हैंडल करता है, ठीक है। तो दैट्स द होल थिंग। एंड हाँ, इसका इन डेप्थ में आई गेस बहुत सारा चीजें हैं। इन द लैब्स यू विल बी सीइंग लाइक वहाँ पे चीजें लिखा हुआ रहेगा, बट दे आर मोस्टली यूज्ड एज द वर्ड्स एंड यू माइट नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्यों है और वो किस लिए यूज किया है। इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोग फर्स्ट वीक ऑफ 30 डेज ऑफ क्लाउड के अंदर जो भी तुम लोग करोगे उसके अंदर जो भी चीजें यूज हो रहा है, जो भी जैगन्स प्रोबेबली यूज हो रहे वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। वन ऑफ देम बीइंग लोड बैलेंसिंग। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आई इमेजिन आई एम हैविंग 5 सर्वर्स, तो 5 सर्वर के 5 अलग अलग आईपी हो गए। किसी ने तो ये सोचा ही नहीं, अभी 5 अलग अलग आईपी है, सब लोग सेम चीज देंगे, तो हाउ वुड इट कम अंडर अ बिग रूफ ऑफ www.google.com, ठीक है। कि अभी मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि भाई www.google.com है तो ये आईपी पे जाएगा, या तो ये आईपी पे जाएगा, या तो ये आईपी पे जाएगा, एंड
इफ यू इमेजिन बहुत सारे आईपीज होंगे गूगल के पास, तो कितने सारे सर्वर्स है ना, तो वो कौन से आईपी पे भेजेगा तुम्हारा रिक्वेस्ट को? एनी गेसेस गाइस? पाइथन रैंडम फंक्शन? नहीं यार, रैंडम फंक्शन से लेट्स से कि दैट्स अ गुड पॉइंट, लेट मी कम टू दैट। लेट्स से कि हम लोग रैंडम फंक्शन से भेज रहे हैं, ठीक है, एंड आई हैव 3 सर्वर्स हियर। तो प्रोबेबली मेरा जो रैंडम फंक्शन है वो मुझे लेट्स से 2-3 बार मुझे 2 ही दे रहा है, ठीक है, एंड मेरे को 1 और 3 बहुत कम बार आया है। सो व्हाट वुड हैपन एंड व्हाट वुड एंड अप हैपनिंग इज कि भाई मेरा जो सर्वर नंबर 2 है ना, वो पूरा लोड से भरा हुआ है, 1 और 3 खाली है। तो सम कस्टमर विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ लेटेंसी एंड अदर्स विल बी लाइक एकदम मस्त चल रहा है भाई साहब, तो एकदम जब्बर चल रहा है। ओके, हैशिंग मेथड से भेजेंगे। अविनाश, दैट्स अ गुड पॉइंट, that's a good point. Load balancing internally does that thing as a start point कि वो hashing करता है, but there is more to it priority wise. That's nice, Aman. How would you prioritize your serve कि with server पे? Yes, Rachit, that's a great point. जो भी आईपी में अभी ट्रैफिक कम है वहां पे मैं अपना लोड को ज्यादा ट्रांसमिट करूंगा। एग्जैक्टली रचित, तो यही काम है लोड बैलेंसर का। whenever a lot of requests comes, it just chooses whichever server is having least traffic, and तो that is one of the parameter के traffic कम हो। again the second parameter could be your location. if you imagine कि गूगल का है तो गूगल have like multiple servers, तो वो तुम्हारे घर के नजदीक जो भी सर्वर होगा, like in a sense the most near to your device, that server would be accessed because that causes less latency than the others. Okay, so that's about the load balancer, and is it for the core concepts that we have to look into for this session. किसी को भी कुछ भी डाउट है अभी तक ये कंसेप्ट्स में? हम लोग इसके बाद देखेंगे कि वेट गाइस, जस्ट डोंट लीव अभी पिक्चर बाकी है, रुको यार। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि व्हाट आर द बेस कंसेप्ट्स, एंड हम लोग क्या क्या what you guys will be looking into when you will be doing the labs. अभी हम लोग आते हैं कि एक्चुअली गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन. So start with a solid platform. Google provides you with a lot of tools when it comes to cloud. There are a lot of इतने सारे tools है कि we won't even be able to put it and even forget us. Like 30 days of cloud में भी तुम लोग वो सारे के सारे tools नहीं देखोगे, ठीक है। There are so many tools available under the roof of Google Cloud Platform, ठीक है। But our task is to understand the concept, and तुम लोग वो सारे tools को अपने हिसाब से explore कर सकते हो, right guys? This next page. We lost this or what? हाँ, okay, here it is, here he is. Okay, तो हाँ, अभी गूगल क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल वेज है। द फर्स्ट वन इज गूगल क्लाउड कंसोल। तो जो उनका वेब पेज है, बहुत लोगों ने देखा रहेगा गूगल क्लाउड का जो वेबसाइट है। आदित्य, दिस वुड बी एंडिंग प्रीटी सून, लाइक दिस इज द लास्ट पार्ट। इसके बाद बस हम लोग वो क्रेडिट्स के लिए गो थ्रू करेंगे एंड दैट्स ऑल। ओके, सो जो भी क्लाउड कंसोल है, that is your web GUI interface to interact with the cloud platform.
Cloud SDK and Cloud Shell, that is command line interface. Those who actually want to feel the raw power. No, just kidding. तो मोस्टली तुम लोग जो CLI एंड GUI दोनों से चीजें कर सकते हो, जो भी तुमको करना है, both things, like anything you can do with both, as long as it is for Google Cloud Platform. ठीक है. So can anyone tell me what is the use of having a CLI as well as GUI? Why not just have only one thing? Let's, अगर मैं GUI से कर सकता हूं तो why do I need CLI? Okay, ease of usage. CLI is more user friendly, surely for programmers. Yes, Anshu, that is true. There is one more big factor that we can consider when we are going through CLI. Okay, Aman, that's the same thing happens with this interface as well. Needs fewer resources. Okay, but ठीक है ना यार, you get to click things rather than typing it whole thing out. तुम लोग बस क्लिक करके कर सकते हो GUI में. So okay, let me tell you, CLI helps you automate things. So ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं होता यार हम लोग हर बार AI बना के make things like make AI do the things. ऑटोमेशन का मतलब है we just write a program that can do our boring and tedious tasks. ठीक है. तो CLI gives you that access कि तुम लोग एक automation program लिख सकते हो that would for example let's say that would boot up a new VM whenever user load increases. ठीक है. So that's why CLI is very useful. Again, REST based API है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं. एंड क्लाउड कंसोल मोबाइल ऐप है, दैट इज फॉर कि अगर तुम लोग कभी बाहर हो एंड यू नीड टू समटाइम्स चेक समथिंग, not much preferable for having proper usage, like professional one, but it works if you are away from the desk and you need to do something in urgency. Okay, next slide. So this is our Google Cloud platform. You get to see everything here. Like nahi, slide में नहीं, but in the platform, you have access to everything. That is your from pricing to all the VMs and everything that you have ever done inside the GCP is all here, and you can just access it with few clicks. And इसके अंदर और एक चीज है जो हम लोग को मिलती है. I will tell you about it after the next slide. This, yeah. So whatever you do inside GCP is stored inside a project. So imagine project being a biggest box. ठीक है, उसी के अंदर तुम्हारा सारा चीजें होगा. Whatever VMs you do, whatever containers you make, whatever containers you spun up, whatever APIs you call, whatever third party things you put in, this all things are under this project name. And this is a table that will actually help you when you will be working with GCP by yourself, hands on, ki which things are mutable, non-mutable. This whole table is just for our understanding, nothing else. याद, तुम लोग इसको याद रख लोगे जैसे जैसे यूज करते जाओगे, and it won't be much of an issue. Even if you can't remember, don't worry about it, you can always Google search it. Moving on to the next slide. This thing is Google SDK. तुम लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और you can use it for free. अपना Google Cloud platform पे जाओ and you will get to see a symbol. this next slide पे है वो, दिखा ना. This Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ next slide. That's okay, that's okay. हाँ,
तो क्लाउड शेल कैसे स्टार्ट कर सकते हो? एज यू कैन सी देयर इज अ रेड मार्क, दैट इज द सिंबल ऑफ क्लाउड शेल. मूविंग ऑन, जब तुम लोग वहां पे क्लिक करोगे तो दिस नेक्स्ट स्लाइड, तो यू विल गेट एक्सेस टू दिस, जो बॉटम में तुम लोग को ब्लैक ब्लैक टर्मिनल जैसा दिख रहा है, दैट इज वेर यू गेट एक्सेस टू. And this terminal is basically your free VM that you get from the Google. It have 5 this 5 GB of persistent data storage that it stays for a pretty long time. And अगर उसको कुछ टाइम तक यूज नहीं किया तो that will be lost. But again, वो एक दिन के लिए, और ऐसे इमेजिन 2-3 दिन के लिए you will have it with yourself. ठीक है, तो ऐसा समझ लो तुम्हारे पास एक VM है with 5 GB of hard drive for free. ठीक है, and it has preloaded with Google Cloud CLI. Yeah, and you can actually go there and try different things out with this terminal. And वहाँ पे एक GUI का symbol है. So on clicking on that symbol, this next slide, you even get ID in the Google Shell itself. It is very much similar to अपना VS Code. So it is almost similar to VS Code that we use, and it's again on the cloud on VM. It will run on the VM. So even if don't think कि like अरे यार ये तो बहुत छोटा VM है, VMs run faster than our modern PCs, like our PCs that we run at the home, just because कि वहाँ पे they don't have to actually have a GUI operating system. They are just running on the terminals. So that's why they run really fast, even if they have very small resources. That's the profit of having a VM at the cloud. Okay, they just move on. And this is all that we have to say about all the concepts and all the things that we would like to introduce you to in Google platform. And हाँ, बस इतना ही था. अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट है related to any kind of your concept, you can ask. ठीक है, and after this we have the questions of हम लोग इस week का lab कैसे करें, and how to get credits and what is the process about it. ठीक है, and we'll be taking on the issues कि तुम लोग को जो भी face हुआ है, and any other kind of questions regarding cloud. ठीक है, so stay tuned for that. And yeah, I would like to hand it over to Harshit. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? या क्लियर. हाँ, सो सबसे पहले तो बहुत सारे जन का कि मेल नहीं मिला, तो सबसे पहले प्राइमरी में चेक करो. प्राइमरी में नहीं है तो स्पैम सोशल प्रमोशंस, अगर वहाँ पे कहीं नहीं है देन कॉन्टैक्ट अस. इफ यू हैव फिल्ड फॉर्म करेक्टली, तुमने ईमेल जो है वो सही दिया हुआ है फॉर्म के अंदर जो ईमेल का ऑप्शन था, फॉर्म कैसे कोई भी ईमेल आईडी से भरा हो प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म के अंदर जो ईमेल सही दिया हुआ है उसी पे आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देख लेना यहाँ पे, अगर स्पैम सोशल प्रमोशंस में जाके देख लेना, वहाँ पे होएगा, ये वाला ईमेल रहेगा गूगल क्लाउड एड्यू से. तेजस आगे करना. हाँ, फिर नेक्स्ट जो रहेगा, लाइक मैं शेयर स्क्रीन करके दिखा सकता हूँ क्या? आई डोंट थिंक, नहीं अभी नहीं दिखा सकता. ठीक है, तो गो टू दिस लिंक, लाइक जो सेकंड पॉइंट रहेगा उस पर लिंक पे क्लिक करना. मेक श्योर यू ओपन इट इन इनकॉग्निटो मोड, डोंट ओपन इट इन नॉर्मल जो भी तुम्हारा लॉग्ड इन रहेगा अकाउंट, उसमें मत करना, इनकॉग्निटो मोड में खोलना. ऑल्सो इट इज सजेस्टेड कि कोई भी क्विक लैब्स कर रहे हो उसको इनकॉग्निटो मोड पे करना तो बेटर रहेगा. मुझे भी नहीं पता क्यों करना है, बट उन्होंने गूगल वालों ने बोला है, बस इतना पता है करना. और I would like to intervene a bit कि बेसिकली ऐसा होता है, क्विक लैब जब भी तो आप करोगे, आपको एक गूगल अकाउंट का आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, एंड यू नीड टू लॉग इन इनटू दैट आईडी पासवर्ड. तो इन केस अगर आप गूगल क्लाउड में लॉग इन करते वक्त कुछ भी इश्यू होता है, इट माइट लॉग इन इनटू योर अकाउंट, एंड वट एवर यू डू माइट एंड अप चार्जिंग यू अबाउट, लाइक गूगल माइट एंड अप चार्जिंग योर अकाउंट फॉर दैट, जबकि आपके पास क्विक लैब, आप क्विक लैब कर रहे थे एंड इट जस्ट मेस्ड अप, तो उसकी वजह से. सो मेक श्योर यू डू इट ऑन इनकॉग्निटो. अभी रहियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज क्लोज्ड. यस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो लाइक बहुत टाइम हो गया हम क्लोज हुए हुए, अभी लाइक 30 डेज ऑफ क्लाउड का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है. सो
सॉरी अगर तू नहीं भर पाया तो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। तो once you open the tab, तो so you will get this। तो प्रीवियसली वो जो टैब थर्ड वाले पॉइंट पे तुम्हें तुम्हारा एक्सेस कोड रहेगा, वो कॉपी कर लेना एंड पेस्ट हियर। once you paste here, next लॉग इन। once you paste here, ये वाला होम पेज आ जाएगा। होम पेज में जाने के बाद साइन इन करना। साइन इन जो तुम्हारा ईमेल आईडी फॉर्म में दिया है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म में ईमेल जो सेक्शन था उसमें दिया है, वो वाला उस वाले ईमेल से लॉग इन करना। एंड फिर तुम लोग उसमें जाओगे तो प्रोफाइल में जाके देखोगे तो क्रेडिट्स आए रहेंगे। अगर क्रेडिट्स नहीं आए देन वेट फॉर 5 मिनट्स, रिफ्रेश द पेज। और अगर फिर भी क्रेडिट्स नहीं आ रहे देन परफॉर्म दिस होल स्टेप अगेन। वापस से वो लिंक को इनकॉग्निटो में खोलना, वापस से कोड डालना एंड अगेन डू द सेम प्रोसेस। अगर फिर भी नहीं आ रहा है देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, राइट। फिर उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अ टूर ऑफ क्विक लैब्स एंड गूगल क्लाउड, ये करना जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तुम्हें मंथली पास नहीं मिलेगा। 9 क्रेडिट्स जो मिले हैं वो सिर्फ शो के लिए, उसका कुछ मतलब नहीं है। तुम ये कोर्स करोगे तो तुम्हें मंथली सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगेन बोनस भी है। बोनस में अगर इफ यू डू एनी ऑफ द क्वेस्ट इन द track 1 or track 2, you will get one more month free. So you can get 2 more months, but for 1 month you will need to do this particular lab, a tour of quick labs and Google Cloud. Yeah, and बाकी तो सब self explanatory। next slide Tejas। जब क्लिक करोगे then you can read all the instructions here and complete the lab। मुझे नहीं पता, लाइक कोई लोग बोल रहे थे कि 5 मिनट सिर्फ लैब में बिताएंगे तो हो जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार तो पूरा लैब करना। इसके एंड में क्विजेस भी है, वो भी देना। देन आई थिंक कि तुम्हें मंथली सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगेन मंथली अगर ये जब लैब कंप्लीट कर लोगे, एंड लैब कर दोगे, तो तुम्हारा प्रोफाइल में जाओगे तो क्रेडिट्स की जगह मंथली सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। एंड बस वही है। अगर नहीं आया है तो 20-30 मिनट वेट करना। इट कैन टेक टाइम। या दैट इज इट। सो लाइक स्टार्टिंग इतना ही है। उसके बाद जो सिलेबस है वो आई थिंक हम लोग लिंक शेयर कर देंगे। तो वहाँ पे 2 ट्रैक्स है। ट्रैक 1 इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैक 2 इज ML। if you complete one track, you will get certain prizes, and if you complete both track, you will get certain prizes। both prizes are different obviously। अगर दोनों ट्रैक करोगे तो बेटर प्राइजेस मिलेंगे। एंड एटलीस्ट 1 ट्रैक करना अगर प्राइजेस के लिए एलिजिबल होना है तो। या दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट? कुछ शो करना है तो मैं भी कर सकता हूँ। या अंशु, मैं सेंड कर दूंगा लिंक, जहाँ पे जितने भी पूरा ट्रैक वाइज सिलेबस है वो मैं कर दूंगा। हाँ, बट आई थिंक यश लाइक क्विजेस देना जरूरी है ना। 5 मिनट्स इनफ है, प्रोवाइडेड स्कोर फुल है टॉप राइट में। नो, यू डोंट हैव टू एनरोल फॉर एनी ट्रैक्स। क्विज जरूरी है। अगर 5 मिनट्स लैब में बिताओगे तो ठीक है अकॉर्डिंग टू यश, बट क्विज जरूरी है। How to enroll? You are not enrolling for particular track. You have enrolled for this 30 days of cloud. You have got 1 month subscription of Quick Labs। We will give you the link of the syllabus। वहाँ पे तुम लोग सिलेबस वाइज जाके सारे ट्रैक्स के जो भी सिलेबस के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर सकते हो, लैब कंप्लीट कर सकते हो, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर whatever the price is। क्रेडिट्स नहीं आए, विशाल को क्रेडिट्स नहीं आए। ओके, सो विशाल तू हमसे बात कर सकता है, देखते हैं क्यों नहीं आया। देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर GDSC, बट लाइक ओनली अनाउंसमेंट पर्पसेस। अगर डिस्कशन करना है तो डिस्कॉर्ड सर्वर। यार लाइक डिस्कॉर्ड में ऐसा है कि मे बी समवन एल्स हैज माइट हैव फेस द सेम इश्यू कि जो आपको फेस हो रहा है, तो ही हैज द एक्सपीरियंस, ही कैन गाइड यू बेटर। ठीक है। अगेन लैब कैसे करना है, स्क्रीन शेयर प्लीज। लैब करना सिंपल है। ये वाला जो मैंने पेज दिखाया था, जो इससे पहले वाला स्लाइड एक बार लेके जा पेजेस। सो फॉर एनी लैब वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। यू जस्ट नीड टू रीड देम एंड दे हैव क्लियर थिंग कि क्या क्या करना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है सब कुछ, लाइक एकदम ही स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है सारी चीजें। वहाँ पे जाके जो भी स्टेप्स है वो परफॉर्म करना एंड यू विल बी डन विद इट। कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
अगर जो भी बिगनर्स है उनको तो आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ 5 मिनट मत बिताना, थोड़ा बिता लेना, जो भी एक बार एनवायरनमेंट से अच्छा खासा हो जाएगा, फेमिलियरिटी हो जाएगा, तो नेक्स्ट लैब्स में भी आपको इजी गिरेगा हाउ टू गो अहेड। ठीक है, ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस अगेन इन शॉर्ट। अगर कोई इशू नहीं है तो लीव कर सकते हैं। यस, यू कैन लीव। there is more /s in Discord, so in chat we can ask about. You can ask in 30 days of cloud category, general or anywhere else as well. मतलब और या फिर जनरल में, बट आई वुड सजेस्ट अगर 30 डेज ऑफ क्लाउड का क्वेरीज है तो 30 डेज ऑफ क्लाउड में करो, तो सॉर्ट करने में इजी होएगा जो भी आएंगे। again we have a query section in 30 days of cloud as well, तो 30 days of cloud में आप जाओ एंड वहां पे queries है, वहां पे भी आप डाल सकते हो अपना क्वेश्चन। हितांश, थोड़े जन को इधर प्रॉब्लम है कंफर्मेशन मेल का, उन्होंने बोल रहे फॉर्म भरा उसके बाद भी नहीं आ रहा, सो उनका Okay. किधर क्या, उनका लाइक डिस्कॉर्ड पे कुछ क्या लाइक कैसे रखना है उनको Okay. पता कांटेक्ट करने को? अभी जो मेरा बात हुआ था उन्होंने ऐसा बोला है कि कुछ लोगों का मेल आने का बाकी था जो आज रात तक आ जाना है, तो अगर लाइक there could be two things, either you didn't got the mail because you are one of those students कि जिनका मेल आना का बाकी है, और either there is some kind of issue with whatever data you have filled in। ठीक है, अगर आपने जो डेटा भरा है उसमें कहीं पे भी मिस्टेक है, they would just simply remove your entry। हम लोग ने इसके लिए बात किया था कि कैन वी गेट अ सेकेंड चांस और समथिंग, बट उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कैन यू एक्सप्लेन अगेन दिस प्रोसेस? हाँ, बता देता हूँ। ईमेल आएगा, ईमेल अगर तुम्हें प्राइमरी में नहीं मिल रहा तो जाके अपने प्रमोशंस या फिर स्पैम या फिर जो भी तुम्हारा सोशल है उसमें जाके चेक करना, मे बी वहाँ पे है। इन ईमेल यू हैव लाइक एकदम इंस्ट्रक्शंस दिए प्लेन इंग्लिश में, मैंने तो वही फॉलो किया था। अगेन फिर भी बता देता हूँ, वहाँ पे लिंक रहेगा जहाँ पे आप लाइक खोलने, जहाँ से अपन आप क्विक लैब्स एक्सेस कर सकते हो। ओपन दैट लिंक ओनली। ये सर्चेबल नहीं है क्विक लैब्स में, गूगल पे नहीं जाके सर्च कर सकते। वो लिंक जो भी रहेगा ईमेल के अंदर, ओपन दैट लिंक इन एन इनकॉग्निटो टैब। उसके बाद इनकॉग्निटो में ओपन कर लिया, उसके बाद जो भी कोड दिया रहेगा वहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा, वो कोड जो रहेगा उस पॉपअप विंडो में डाल देना। वंस यू हैव सबमिटेड द कोड, लॉग इन योर अकाउंट, जो भी अकाउंट तुमने फॉर्म के अंदर ईमेल सेक्शन में डाला था, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन, वहाँ पे तुम्हें ये गूगल क्लाउड का टूर ऑफ गूगल क्लाउड एंड लैब मिलेगा। वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन अगेन वहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, वो कंप्लीट करना, वहाँ पे क्विजेस देना, एंड पहले वेट कर लेना क्रेडिट्स आने का लैब देने से पहले। अगर क्रेडिट्स नहीं आ रहा है तो लैब मत देना। एक बार तुम लोग प्रोफाइल में जाओगे, अपने क्लिक करोगे तो नीचे क्रेडिट्स का ऑप्शन दिखेगा कि कितने क्रेडिट्स है। अगर क्रेडिट्स नहीं आ रहे देन डोंट डू द लैब, एंड वंस यू हैव गॉटन द क्रेडिट्स डू द लैब। और लैब करने के बाद थोड़ा वेट करना, तुम्हें मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तुम्हारे प्रोफाइल में दिख जाएगा वो चीज़। इफ यू वांट कैसे दिखता है वो चीज़ तो मैं दिखा सकता हूँ अभी शेयर करके। या लाइक इनकॉग्निटो विंडो में करोगे तो बेटर है, बट तुम्हारा अकाउंट लॉग्ड इन होना चाहिए ऑब्वियसली। ओके, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन दैट कि बहुत लोगों को है कि हाउ टू गेट एक्सेस टू बोथ ट्रैक्स। जब आप लोगों ने ये कंप्लीट किया, व्हेन यू गेट द मंथली पास यू हैव एक्सेस टू बोथ द ट्रैक्स। जस्ट जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है, जस्ट फॉलो दैट सिलेबस। इवन इनफैक्ट ये जो पीपीटी है वहाँ पे भी हम लोगों ने वो सिलेबस डाला है, दैट आर अगेन क्लिकेबल लिंक्स। ये पीपीटी एंड द रिकॉर्डिंग बोथ विल बी अपडेटेड ऑन द सेम इवेंट पेज। सो एवरीथिंग दैट इज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके इवेंट में आने का, इवेंट के बाद का जो कुछ भी मटेरियल चाहिए, ये सब चीज वही इवेंट पेज पे रहेगा जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मैसेज में मिलता है। द सेम लिंक के अंदर तुमको सब चीजें मिल जाएगा, यू कैन हैव इट। ठीक है, तो इसके बाद मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा, यू कैन गो देयर, यू कैन सी द सिलेबस एंड दैट इज अगेन क्लिकेबल लिंक्स, यू कैन गो देयर एज वेल। नहीं, Dhaivat, if I'm not wrong, you will like both track का access is open. What we will be doing is just observing कि तुम लोग कौन कौन से labs कर रहे हो and in which thing it belongs to. Yeah, thanks Harsh. Thanks Yash.
सो यश ने सिलेबस लिंक शेयर कर दिया है, सो इट हैज ऑल द सिलेबस। तुम लोग को बस वो जो भी क्वेश्चंस दिए है वो सारे क्वेश्चंस को करते जाना है। देयर आर 6 क्वेस्ट इन ईच ट्रैक एंड बोथ विल बी ओपन विद जस्ट मंथली सब्सक्रिप्शन। How to get extra 1 month pass of Quick Labs? क्या है यार ये Quick Labs? हाँ, तुम कोई भी, आई थिंक उसमें मेल में दिया हुआ है कि कोई भी क्वेस्ट करोगे तो 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा। कोई भी बैच, 1 मिनट मेरे को कंफर्म करना है जो मेरे Somil, yes Harshit, that's true. Somil, it is again the thing is कि हाँ, अगर आप दोनों में से कोई भी एक ट्रैक कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। अगर आपने एक ट्रैक किया सो यू विल गेट skill badges related to that track and a certificate for completing one track, and the goodies would be a t-shirt and the stickers. अगर आपने दोनों ट्रैक किया है एक ही मंथ, लाइक वट एवर यू डू यू जस्ट हैव टू डू इट इन 1 मंथ। अगर आपने एक मंथ के अंदर दोनों ट्रैक कंप्लीट किया है तो यू विल गेट स्टिकर, गुडी बैग एंड बॉटल। सो बेसिकली अगर आपको 2 ट्रैक करोगे तो ज्यादा प्राइस मिलेगा, एक ट्रैक करोगे तो हाफ प्राइस ऐसा। 1 मिनट हितांश, एक काम करना, लाइक तो स्क्रीन शेयर बंद कर, मैं करता हूँ। तेजिस कुड यू शो, ओके हो गया। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। हाँ, सो देखो, लाइक तुम लोग मेल में जाओगे। मेरा मेल प्राइमरी में नहीं आया था, मेरा प्रमोशंस में आया था, यार गूगल क्लाउड एड्यू करके। सो दिस वाज द ईमेल। सो नाउ गेट, एक पूरा प्लेन इंग्लिश में लिखा है, अगेन पढ़ सकते हो, पढ़ना है तो आई वुड से सजेस्ट पढ़ लेना। गो टू दिस लिंक, ओपन दिस लिंक इन न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ओके, तो ये लोड होएगा एंड ऐसा कुछ आएगा। सो वेयर डू यू गेट दिस कोड फ्रॉम? अगेन वापस से मेल में जाना एंड यहाँ पे तुम्हें कोड मिलेगा, लाइक सेकेंड लाइन पे मिल जाएगा कोड, एंड वो यहाँ पे जाके डाल दोगे तो वो आ जाएगा। मैं वापस से नहीं डाल रहा क्योंकि मैं एक बार डाल चुका हूँ। एंड उसके बाद जाके साइन इन कर देना, साइन इन विद गूगल कर देना, या फिर देख लेना, मैं तो वही कर दूँ। एंड यूज द अकाउंट विच यू हैव मेंशन्ड इन द ईमेल इन द फॉर्म। और साइन इन करने के बाद या यू विल गेट दिस, पूरा आएगा। तो ये टूर ऑफ क्विक लैब्स एंड गूगल क्लाउड करना रहेगा। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मेरे को भी मंथली सब्सक्रिप्शन दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे मिल चुका है, बट अगर तुम्हें 9 क्रेडिट्स दिखाना चाहिए, एंड वंस यू गेट द 9 क्रेडिट्स यू कैन डू द लैब। एंड जिनको भी नहीं आया है 9 क्रेडिट्स या मंथली सब्सक्रिप्शन, अगर आपने प्रॉपरली किया है देन वेट फॉर इट। टाइम लगता है थोड़ा, इट टुक मी अ डे, लिटरली मुझे एक पूरा दिन लगा था मंथली सब्सक्रिप्शन आने में, बट दैट्स ओके, जस्ट वेट फॉर अ बेट। 2-3 बार रिफ्रेश करके देखो, लॉग आउट करके रीलॉग इन करो, ठीक है। जस्ट टेक आउट, वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और जिन्होंने ये 30 डेज ऑफ क्लाउड फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए नहीं है, उनको नहीं मिलने वाला। सो या बेसिकली जिनको भी ईमेल नहीं आया, दे वोंट बी एबल टू डू दिस। देयर इज वन थिंग दैट दे कैन डू इज कि देयर इज अ स्किल चैलेंज। आई गेस वी लाइक लॉस्ट अ लॉट। वो एकदम एंड में बता देना एक बार इस पे कुछ अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो। हाँ ठीक है। और यहाँ पे जाओगे तो लाइक ओके, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कैसे लैब करना है, क्या क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। क्विजेस करना, क्विजेस नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं पास होएगा इस चीज का, एंड यू वोंट गेट द सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे अगर अभी किसी का 0 क्रेडिट्स आ रहा रहेगा या फिर किसी का, और इनिशियली हो सकता है मे बी ज्यादा क्रेडिट्स आ जाए, 9 से ज्यादा 193 आ जाए, तो कोई टेंशन नहीं। मेरे को 193 क्रेडिट्स आ गए थे। यू हैव गॉटन द क्रेडिट्स एंड जस्ट डू द लैब। Actually, you can figure it out. Simple questions है, don't worry about it. Just read it, you will get the answers. Pretty simple, बहुत simple है। क्योंकि मैं अभी लाइक वापस से नहीं कर सकता ये चीज, अभी लाइक क्या ही करूँ, वापस से कर तो सकता हूँ, बहुत टाइम लगेगा।
एक सिंपल इंग्लिश लाइक वो सीधा सीधा लिखा है क्या क्या करना है, पूरा Okay, स्टेप्स लिखा हुआ है. yeah. Before many of you drop off, एक important चीज है, we need to you guys need to download Docker for the next week. We will look into the Docker a bit. ठीक है, तो Tejas, could you reshare the screen? I just slipped my mind. So again, all the links for the Docker installation will be shared. But ऐसा कोई है जिनको डॉकर के बारे में कुछ भी नहीं पता है? जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्कॉर्ड पे आके बता देना, हम लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या आगे क्या कैसे बढ़ सकते हैं अपन. Okay, so there are, I guess, a lot of people who don't know anything about the Docker. Okay, आपको कंटेनर समझा है ना कि what is a container? Now हम लोग कंटेनर को कंटेनर के साथ वर्क करने के लिए डॉकर यूज करते हैं. So again, I will paraphrase our favorite search engine Google का definition. Docker is essentially a toolkit that enables developer to build, deploy, run, update, and stop containers using simple commands and work-saving automation through a single API. ठीक है? So let me put it in more simpler words. Docker एक सॉफ्टवेयर है, एक टूलकिट है कि जो मुझे कंटेनर बनाने में, डिप्लॉय करने में, उसको यूज करने में, अपडेट करने में, एंड अगर वो रन हो रहा है तो उसको स्टॉप करने में हेल्प करेगा. दैट्स इट. डॉकर एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे कंटेनर्स के साथ काम करने में हेल्प करने वाला है, बस. मेक सेंस? So imagine Docker being Git for your containers. ठीक है? And similarly, we have Docker Hub, that is GitHub. So you can see the analogy. Yes, guys? Make sense? थक गए लगता है. ठीक है, कोई नहीं. बस that's all from our side. Next slide पे बस installation details है. We just have all the links for the installation. Again, this PPT will be shared on the same event page. वहाँ पे जाके तुम लोग उसको access कर सकते हो with the recordings. And हाँ, अगर किसी को कुछ एक और एज यश शर्मा पॉइंटेड, अगर विंडोज में इंस्टॉल कर रहे हो तो या वर्चुअलाइजेशन एनेबल करना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा कि विंडोज में एनेबल नहीं रहता. तो इंस्टॉलेशन के वक्त तुम लोग को कुछ भी इश्यू आता है, जस्ट ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन डिस्कॉर्ड. एनीवन ऑफ अस और लाइक एनीवन, लाइक लिटरली एनीवन, अगर अपने साथ जो कुछ भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनमें से भी किसी को पता है, दे कैन हेल्प यू आउट. ठीक है? इट इज नॉट लाइक कि हम लोग कोर में तो हम लोग ही आंसर कर सकते. एनीवन कैन आंसर एनीवन्स क्वेश्चन. ठीक है? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी आंसर कर सकता है. ठीक है? And that's all. Thank you very much. I think we can end कर देना. Bye bye guys.